پاکستان تحریک انصاف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ، وزیراعظم بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ تمام صوبائی صدور کو 15 دن میں تنظیمیں مکمل کرنے کی ہدایت۔ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ حکومت کو عدم اعتماد کا خوف ہے، نہ لانگ مارچ اور استعفوں کا۔ ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں۔ اپوزیشن اگلے انتخابات کی تیاری کرے۔ اطلاعات کے وزیر مملکت فاروق حبیب۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں میں تاخیر کے مسائل حل ہو گئے۔ منصوبوں میں سست روی کا تاثر درست نہیں۔ دوسرے مرحلے میں صنعت، زراعت، انفراسٹرکچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فائبر آپٹک سمیت کئی شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ معاون خصوصی سی پیک خالد منصور۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف 6 رکنی وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال سمیت سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی رہائی پر بات چیت ہوگی۔ شریف خاندان کے یک طرفہ فیصلوں سے چودھری نثار جیسا منجھا ہوا سیاستدان پارٹی سے کنارہ کش ہوا۔ شاہد خاقان عباسی کے تحفظات نقطۂ آغاز ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ چودھری فواد حسین۔ کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری، این سی او سی نے پی ایس ایل کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 50% تماشائیوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ 15 فروری تک 50% گنجائش کے ساتھ تماشائی میچز دیکھ سکتے ہیں۔ 16 فروری سے 100% تماشائی اسٹیڈیم آ سکیں گے۔ اور کراچی میں پی ایس ایل 7 کے پہلے مرحلے کے آخری روز کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز ہوں گے مد مقابل۔ میچ شام 7:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست ہوگا۔ پوائنٹس ٹیبل پر ناقابل شکست ملتان سلطان سر فہرست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پارٹی چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام صوبائی صدور کو 15 یوم میں تنظیمیں مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سی ای سی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر مملکت فاروق حبیب نے بتایا کہ سی ای سی اجلاس میں مستقل پارلیمانی بورڈ بنا دیا گیا ہے۔ جلد اضلاع کی سطح پر پارٹی ورکرز کنونشن ہوں گے۔ وزیر اعظم بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ آئندہ آنے والے لوکل باڈیز الیکشن ہیں، اس حوالے سے پارٹی نے ایک اپنا مستقل جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا ہے۔ پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ جو متوقع امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز بھی کرے گا، ان کو شارٹ لسٹ کر کے جو ہمارے امیدواران ہوں گے جو کہ ضلع کی سطح کے اوپر یا جو سٹی میئر کے لیے جو ہے وہ امیدواران ہوں گے ان کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عوامی رابطے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔
वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा कि अपोजिशन अगले इंतखाबात की तैयारी करे, हुकूमत को अदम एतमाद का खौफ है, न लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का। हम एहतसाब के अमल से पीछे हटने वालों में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो चाइना का दौरा है, जो जॉइंट कम्युनिकेशन आया है, जो मुश्तरका एलामिया आया है, उसमें बड़ी डेप्थ के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना की जो एक मिसाली दोस्ती है, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा बेहतरीन ताउन का जो है वो एक सिलसिला है, उसका उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इहाता किया गया है। और कुछ लोग जो है वो तस्वीरें ढूंढने के ऊपर लगे हुए थे। मैं उनको भी ये आज मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के मफाद की बात हो, वहाँ आप अपनी छोटी सोच को, अपनी महदूद सोच को आगे ना लाया करें। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म 9 फरवरी को फैसलाबाद में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से गैर ज़रूरी तनकीद की गई। हमारे दौर में CPEC पर रिकॉर्ड पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन की मईशत पर दूरस्त नताइज होंगे। नाज़रीन, मावन खुसूसी CPEC खालिद मंसूर कहते हैं कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर में ताख़ीर के मसाइल को हल कर दिया गया है। मंसूबों पर पेशरफ्त में सुस्त रवि का तासुर दुरुस्त नहीं। CPEC के दूसरे मरहले में सनत, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक समेत दूसरे शोबों में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। तफसील से आगाह करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन खुसूसी CPEC खालिद मंसूर ने कहा कि बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीनी कंपनियों की सीनियर क़यादत ने IT, तमीरात, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, ज़राअत, टेक्सटाइल और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 20 मीटिंग्स को चेयर किया। ऑन द अदर साइड ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लोग थे, उनके भी सीनियर मोस्ट लीडरशिप जो था वो मीटिंग के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इस कम्युनिकेशन का मतलब ये था कि जो भी उनके मसाइल थे, जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उसको किस हद तक हुकूमत पाकिस्तान ने रिजॉल्व कर दिया है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि CPEC अथॉरिटी वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सरमायाकारी को आसान बना रही है। चाइनीज़ का मेन ये था कि वो जिस किस्म की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन 37 अप्रूवल्स हैं जो कि प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब उसमें जो रिजीम है हमारी अप्रूवल की, वो कंप्लायंस रिजीम कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को कमिटमेंट उनको दिया कि जो भी आपके मसाइल होंगे उनको जल्द अज जल्द उनको रिजॉल्व किया जाएगा। खालिद मंसूर ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले में इक्तिसादी जोन्स और दूसरे शोबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान और चीन की कंपनियों ने मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। एक कंपनी है CMEC, वो पाकिस्तान के अंदर एक एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफरिंग सेंटर कायम करना चाहते हैं, जांग बांग ग्रुप। और ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर पेस्टिसाइड्स की प्रोडक्शन की वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो M3 के अंदर। एक कंपनी है टेक्सटाइल फैशन के नाम से, उन्होंने 100 एकड़ लैंड खरीदी है। अब उसके अंदर वो अपना पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने का इरादा रखते हैं। फेज़ 1 में ऑप्टिकल फाइबर लग चुकी है, जो पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक है। अब पाकिस्तान के जितने बड़े सिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह उससे फिर वो कनेक्ट होंगे। सरीन एयरलाइन है, उनके जो मेन स्पॉन्सर हैं, उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया कि अब वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं रशाकाई में। मुआविन खुसूसी ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले के तहत कम से कम वक्त में मंसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे से पाक चीन दोस्ती की वुसअत में इजाफा हुआ है। चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा और इसके समरात जल्द नजर आएंगे। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे चीन में अफगानिस्तान और कश्मीर से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके दो पहलू हैं। उसका एक पहलू जो है वो स्ट्रैटेजिक है, और स्ट्रैटेजिक पहलू जो था वो जाहिर है जो उसमें गुफ्तगू रही। स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ली से मुलाकात हुई, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हुई। जो इकोनॉमिक पॉइंट इसकी साइड है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है और फिर इनका पब्लिक सेक्टर है। जो CPEC के 2-3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था जिसमें गवादर पोर्ट बनी, दूसरा हिस्सा था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स लगे,
और अब तीसरा हिस्सा है जिसमें हम कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा जो है वो बड़ा कामयाब गया है और इससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात की वुसअत है उसमें बहुत इजाफा हुआ। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सेनेट इजलास की। वाने बाला ने गार्डियंस एंड वार्ड्स तरमीमी बिल और इंसदाद नशा आवर मनशियात एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। सेनेट में दूसरे अहम नौयत के 6 बिल भी पेश हुए। मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर अपोजिशन ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं। नमूद मुस्लिम, आगाह कीजिएगा, दीगर 6 बिलों की तफसीलात क्या हैं और जो 2 बिल गार्डियंस एंड वॉर तरमीमी बिल और इंसदाद नशा आवर मनशियात एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर हुआ, उसके चीता चीता निकात के बारे में बताइएगा। जी सलमा, ऐसा है कि आज जो प्राइवेट मेंबर डे के तौर पर क्योंकि आज है, आज तकरीबन तमाम ही जितने भी अरकान हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। आज ख़ासतौर पर जो कानून साजी का जो अमल है वो खासा अहम रहा। सेनेटर फारूक एच नाइक की जानिब से जो गार्डियन एंड वार्स एक्ट जो कि 1890 का एक एक्ट है उसमें तरमीम की बात की गई है और ये तरमीमी बिल जो है ये मंजूर हो चुका है। इसमें जो ख़ास बात यह है कि अब जो बच्चे हैं वो एक ख़ास उम्र तक अपनी वालदा के साथ ही रहेंगे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी भी खातून को, या अगर वो खुदा न खास्ता बेवा हो या वो तलाक याफ्ता हो, तो वो अपने बच्चों से महरूम हो सकेगी, क्योंकि जो गार्डियनशिप है वो एक औरत की ही रहेगी। जबकि उसके साथ साथ जो इंसदाद नशावर एक्ट है जो कि 1997 में जो आया था उसमें आज तरमीम की गई है और इसकी मंजूरी ली गई है। ये बिल शहादत अवान ने पेश किया था। इसमें जो नए किस्म के जो नशावर अशिया हैं, जो सब्सटेंस यूज़ किए जा रहे हैं, उनको इस बिल का हिस्सा बनाया गया है ताकि बेहतर अंदाज में मंशियात की जो तफसील है या उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसको बिल्कुल कानून के दायरे में लाया जा सके। इसके साथ साथ आज जो अब इस वक्त जो सेनेट में जो बहस हो रही है वो अफगानिस्तान में होने वाले इंसानी बहरान और अफगानिस्तान में जो एक अमन और सलामती के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उसको ज़ेर बहस लाया गया है। इस पर मुख्तलिफ सेनेटर्स इजहार ख्याल कर रहे हैं और जबकि कायदे-ए-वान जो शहजाद वसीम है उन्होंने इस पर कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपना जो एक अहम किरदार अदा किया है और हम जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहे हैं। नमूद मुस्लिम, आप हमें आगाह कर रहे थे। सेनेट इजलास में आज मुख्तलिफ नौयत के अहम 6 बिल पेश किए गए हैं। बहस अभी भी जारी है। नाज़रीन, सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ 6 रुकनी आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे तो नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी भी इस मौके पर मौजूद थे। सऊदी वज़ीर दाखिला अपने पाकिस्तानी हम मनसब शेख रशीद अहमद की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अपने एक रोज़ा दौरे में वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। उनकी अहम हुकूमती और सिक्योरिटी शख्सियात से मुलाकातें भी तय हैं। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ वज़ारत दाखिला के दौरे में शेख रशीद अहमद से वफ़द के हमरा मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से खुसूसी सरकारी मुलाज़िमीन फोरम के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने खुसूसी अफराद के लिए पे एंड पैकेजेस समेत उनके दीगर मसाइल के हल के हवाले से वज़ीर ख़जाना की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत खुसूसी अफराद के मसाइल से मुकम्मल तौर पर आगाह है और उनको हर सतह पर मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने खुसूसी अफराद के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई। NCOC ने PSL में मरहलावार 100% तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त दे दी है। वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल और आदाद शुमार का तफसीली जायजा लिया गया। NCOC के मुताबिक इजलास में PSL के लिए लाहौर के स्टेडियम में 50% तमाशाइयों को आने की इजाज़त देने का फैसला किया गया। 15 फरवरी तक 50% गुंजाइश के साथ तमाशाई मैचेस देख सकते हैं और 16 फरवरी से 100% तमाशाई स्टेडियम में PSL मैचेस देख सकेंगे। NCOC ने कहा है कि सिर्फ मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को मैच देखने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी मैच देखने की इजाज़त होगी। मज़हबी उमूर के वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा चीन में अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से निकालने पर बातचीत की है। इस्लामाबाद में मुस्लिम हैंड्स की जानिब से इमदादी अशिया अफगानिस्तान रवाना किए जाने की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता है।
मुस्लिम हैंड्स ने पाक अफगान ताउन फोरम और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से 350 टन खुर्दनी अशिया और विंटर किट्स के 20 ट्रॉलर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए रवाना किए हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नून लीग में शरीफ खानदान के यकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान पार्टी से किनारा कशी कर गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। अपने एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2023 से पहले बहुत सारे लोग पार्टी में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके इन्हें छोड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दोचार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो ज़रूर करे, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अपोजिशन मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखे। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि 22 और 23 मार्च को एक नई तारीख रकम होने जा रही है। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 48वां इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को बताना चाहता हूँ, अगर इन दोनों जमातों ने इधर तुम उधर हम का फैसला कर लिया, यानी नून लीग सिंध में दाखिल नहीं होगी और पीपल्स पार्टी पंजाब में छेड़छाड़ नहीं करेगी, तो हम दोनों जमातों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि कौम जानती है PDM बनाने वाले कौन थे और PDM तोड़ने वाले कौन हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब नोश की बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले फैसलाबाद के दलेर सपूत कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद बिलाल खलील शहीद की रिहाइश का गए और शहीद के वालिद खलील अहमद, भाई और दीगर अजीज़ व अकारिब से ताज़ियत, दिली रंज गम और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने शहीद की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान को यह सदमा हिम्मत और इस्तिकामत से बर्दाश्त करने की दुआ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के साथ जंग करते हुए शहीद होने वाले कौम के सपूतों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। शुहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल नोश की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले फैसलाबाद के कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील के घर गए और उनके वालिद को नजराना अकीदत पेश किया। अपने ट्वीट में डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि हमारा भाई, हमारा बेटा कैप्टन बिलाल पोजीशन होल्डर था। उनके 2 भाइयों में एक बहन, एक वालिद और पूरी कौम उन पर नाज है। वतन की हिफाजत आसान काम नहीं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि बहावलपुर PTI का मजबूत गढ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की महरूमियों का अज़ाला करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और नवाब ऑफ बहावलपुर के साहिबजादे नवाब बहावल अब्बासी से मुलाकात में कही। वज़ीर आला ने नवाब बहावल अब्बासी की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए इसे खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ आज भी पाकिस्तान की मजबूत तरीन जमात है। उन्होंने कहा कि तरक्याती प्रोग्राम्स में जनूबी पंजाब और कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरजीह दी गई है। नवाब बहावल अब्बासी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ही अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही अवामी खिदमत और फलाह बहबूद का अहद निभाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan!
कैबिनेट आवर में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान सुबह नमनगान में पंजाब के ताउन से बनने वाली पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उज़्बेकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने पंजाब में टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का ऐलान किया और कपास की पैदावार में इजाफे के लिए भी पाकिस्तान को भरपूर तकनीकी मदद फराहम करने पर इत्तेफाक किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में माशी तरक्की और इस्तेहकाम का तमाम आलमी इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। पंजाब में सरमायाकारी करने वालों से भरपूर ताउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात दी जाएंगी और पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी उज़्बेकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेगी। मजहबी उमूर के विफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि नात गोई और करत एक फ़न है जिसे बुलंद मकाम हासिल है। अकादमी अदबियात पाकिस्तान में सूफ़ी कॉन्फ्रेंस और नात खान मरहूम खालिद हसनैन खालिद की याद में तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि नात का हक वही अदा कर सकता है जो जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हो। विफाकी वजीर ने मरहूम नात खान खालिद हसनैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी नात सुनने वाले पर बहुत गहरा असर करती थी। तकरीब के अख्ताम पर विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने कॉन्फ्रेंस के शुरका को सर्टिफिकेट्स दिए। सेहत सहूलियत प्रोग्राम की थर्ड पार्टी तौसीक के हवाले से MOU पर दस्तखत करने की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। इस मौके पर मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि सेहत सहूलियत प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। खुशहाल और सेहतमंद कौम के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमें इंडोर सर्विसेज के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कौमी सेहत कार्ड का दायरा कार पूरे मुल्क तक फैल चुका है। पंजाब में मार्च तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत मुफ्त इलाज की सहूलियात मैसर होंगी। उन्होंने कहा कि फाटा, थरपारकर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम लोगों को इलाज की मुफ्त सहूलियात मैसर हैं। समंदरबार पाकिस्तानियों के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अयूब आफरीदी से यूनान के वज़ीर बराए माइग्रेशन एंड असाइलम नोटिस मितारशी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। यूनान के वज़ीर ने बताया कि उनकी हुकूमत पाकिस्तानियों की कानूनी इमिग्रेशन के लिए पॉलिसी वज़ा करना चाहती है जिसके तहत 5 साल के लिए वीज़ा फ्राहम किया जाएगा। समुद्र पार पाकिस्तानी के मुशीर अयूब आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान के सियाहत के शोबे में बहुत ज़्यादा सलाहियत है और अपने मुल्क में यूनानी सयाहों की मेज़बानी करना चाहेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी महंगाई की लपेट में है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने में सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा किया है। अब तक $3.5 बिलियन इन अकाउंट्स के जरिए जमा हुए जो मुल्क की मैशत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर का कहना था कि सऊदी अरब में 25 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो अपने मुल्क में कीमती ज़र मुबादला भेजते हैं। मारूफ कॉलम निगार, अदीब और साबिक रुकन कौमी असम्बली बुशरा रहमान की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, जिसमें मारूफ सहाफ़ियों, अदीबों और दानिशवरों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वो आज 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थीं। बुशरा रहमान 1944 में बहावलपुर में पैदा हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA सहाफ़त किया। बतौर लिखारी उनकी एक मुनफरिद पहचान थी। उन्होंने मुतादिद नावल तहरीर किए जिनमें अल्लाह मियाँ जी, बहिश्त, बराह रास्त, खूबसूरत और लाजवाल समेत कई शाहकार शामिल हैं। बतौर कॉलम निगार उनके कॉलम चादर, चार दीवारी और चांदनी नवाए वक्त में बाकायदगी से छपते रहे, जिनमें वो अहम मुल्की मसाइल और उनके हल पर कलम उठातीं। बुशरा रहमान ने सियासी सफ़र का आगाज़ 1983 से किया। वो 1985 और 1988 में रुकने पंजाब असम्बली और 2002 में रुकने कौमी असम्बली रहीं। बतौर सियासतदान वो पार्लियामेंट में ख़वातीन की आवाज़ बनी और ख़वातीन के मसाइल उजागर किए। बुशरा रहमान ने ड्रामा निगारी भी की। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को कई यादगार ड्रामे दिए। बुशरा रहमान को 2007 में सदारती एजाज़ सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि मरहूमा ने अपनी तहरीर से कई नस्लों की आबियारी की। इनकी अदबी खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी।
वज़ीर आज़म के ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम की बम्पर पैदावार मुतवक्के है। मुल्क में रवा साल गंदम की पैदावारी हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% ज़्यादा मुकर्रर किया गया है। फसल की तैयारी किन मराहिल में दाखिल हो चुकी है, इस बारे में देखिए मुल्तान से शिराज दुरानी की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से रवां साल गंदम का पैदावारी हदफ 30 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता सीज़न में गंदम की पैदावार ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और पहली बार गंदम का पैदावारी हजम 2 करोड़ 10 लाख टन तक जा पहुंचा। गंदम की सरकारी कीमत में इजाफे, खेतों से दाना दाना खरीदने और नाकाबिले काश्त ज़रूरी रकबे को काबिले काश्त बनाने के कौमी मंसूबे के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड बढ़ोतरी है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ज़राअत पे ख़ास फोकस है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत रवां सीज़न के दौरान सिर्फ जनूबी पंजाब में गंदम के ज़ेर काश्त रकबे में तकरीबन 20 लाख एकड़ का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साजगार मौसमी हालात की बदौलत बढ़ोतरी के अहम तरीन मरहले में फसल को बारिश की शक्ल में नमकियात और नामियाती अज्जा की बरवक्त फराहमी और ज़रूरी मदाखिल की मद में बचत से किसानों को ज़बरदस्त रिलीफ मिला है। इस मरहले पर धूप की शिद्दत भी फसल की तैयारी में मुआविन साबित हो रही है। गंदम की पैदावार में इजाफे से किसान, ज़राअत और मुल्क को फ़ायदा होगा। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। कश्मीर के ज़ाफ़रान ज़ारों से उठने वाले संतूर के सुर जब महकते हैं तो वतन किसी जन्नत से कम नहीं लगता। अली रज़ा के संतूर से जो धुन निकलती है उसमें कश्मीर की आज़ादी की उमंग भी है और पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी। नाज़रीन, जिला खैबर की तहसील बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शरपसंदों के हाथों तबाह होने वाले स्कूलों की तामीर नौ का काम मुकम्मल हो गया है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मदुल्लाह खान आफरीदी।
ضلع خیبر میں دہشت گردی کے لہر کے دوران تعلیم کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ دہشت گردوں کے خلاف جب پاک فوج کی کارروائیاں تیز ہوئی تو امن اور علم کے دشمنوں نے تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق ضلع خیبر میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 50 سے زیادہ اسکولوں کی عمارتیں تباہ ہوئی۔ ان عمارتوں کی دوبارہ آباد کاری امن بحالی کے بعد دوسرا بڑا چیلنج تھا جو بخوبی سر انجام پایا جا چکا ہے۔ یہاں پہ نہ تو اسکول تھے یا جو تھے وہ مسمار ہو چکے تھے، آرمی کی وجہ سے یہاں پہ اسکول بنے ہیں، اور ہماری حکومت اور فوج اور عدلیہ یہ ایک پیج پہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں فوج کی یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہے تو یہاں پہ ملیٹنسی کا دور ختم ہو جائے گا، یہاں پہ عوام ایجوکیٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ زندگی کی تمام سہولتیں پرووائڈ کر دیں گے۔ پاک فوج کے انجینئرنگ کور کی جانب سے ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ کے دور افتادہ علاقوں ناکے ملک دن خیل، برکمبر خیل، جبار میلہ، جمال گڑھی، کمر خیل میں دہشت گردوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والے اسکولوں کی تعمیر نو کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ جدید طرز پر بنائے گئے اسکولوں میں وہ تمام سہولیات فراہم کی گئی ہے جو پہلے دستیاب نہیں تھی۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت تحصیل باڑہ اور تیرا میں مزید 17 نئے اسکول تعمیر کر رہی ہے۔ اور حکومت نے مل کے بہت اچھا کام شروع کیا، کیونکہ یہاں پہ پہلے دہشت گردی تھی، یہاں پہ اسکول نہیں تھے، یہاں پہ کوئی سہولت موجود نہیں۔ ایجوکیٹڈ پرسن تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ ریشو بالکل ڈیکریز ہوتا جا رہا تھا، لیکن پاک فوج نے بالکل بہت عمدہ اور بہت اچھی طریقے سے جو ریشو ہے آنے والے وقت میں بالکل وہ انکریز جاتا رہے گا۔ اسکولوں کی تعمیر سے نہ صرف ضلع خیبر میں شرح خواندگی بہتر ہوگی بلکہ لوگوں کی معاشی اور سماجی زندگی میں بھی مضبوط تبدیلی رونما ہوگی۔ محمد اللہ خان افریدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خیبر۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال نے 2015 کا ISO 9000 ورڈ سرٹیفائیڈ ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے انور اللہ خان۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور ملک کے بڑے اسپتالوں میں سے ایک ہے۔ 1976 میں قائم ہونے والا یہ شفا خانہ پہلے ہی تدریسی اسپتال کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انتظامیہ نے حال ہی میں ایک نجی فارم ٹوٹل کوالٹی سسٹم کی خدمات حاصل کرتے ہوئے اس سے ہسپتال کے تمام شعبوں کا مکمل جانچ پڑتال کروایا، جس کے بعد خیبر ٹیچنگ ہسپتال کو بطور ISO 9001-2015 سرٹیفائیڈ تسلیم کیا گیا۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشن میں خیبر ٹیچنگ ہسپتال کا نامینیشن ہونا، نام آنا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور بے شک موجودہ جو بورڈ آف گورنرز ہے اور ہسپتال انتظامیہ ہے، ان کی انتھک محنت سے، ان کی کوششوں سے، ان کی بنی بنائی جو پالیسیاں ہیں ان کی بدولت آج یہ فخر ہمیں محصول ہوا ہے۔ وعدہ ہے، ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اس کوالٹی مینجمنٹ کو، کوالٹی کو ایشور کریں گے، پیشنٹ سیفٹی کو بھی برقرار لائیں گے انشاءاللہ۔ ہسپتال میں ہر قسم کے جدید ترین علاج معالجے کی سہولت موجود ہے جس سے بلا تفریق ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے صوبے کے طول و عرض میں KTH سمیت بے شمار اسپتالوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کروایا۔ انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور ناظرین، خواجہ سرا اور سماجی کارکن سارا گل نے MBBS فائنل کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں کراچی سے سید جہانگیر علی۔ محنت لگن سے نئے باپ کا آغاز کرنے والی سارا گل، جنہوں نے اپنے بلند حوصلے اور جذبوں کی سچائی سے اپنے قسمت کے دھارے بدل دیے۔ سب سے مشکل کام تھا ایڈمیشن لینا۔ کالج والوں کا بہت سپورٹ رہا ہے، بٹ کالج کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی کہ ایک ٹرانس ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے ایک ٹرانس وومن کو فیل ہی نہیں انہوں نے دیا کہ وہ ٹرانس ہے، اور وہ آرام سے اپنا آخری سال فرسٹ اٹیمپٹ میں کر گئی۔ سارا گل نے معاشرے کی تمام تر محرومیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف ڈاکٹر جیسا مقدس پیشہ اختیار کیا بلکہ اپنی محنت سے مثال بنی۔ لوگوں کو کام ہے تنقید کرنا، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو غلط ثابت کر سکتے ہیں اپنے اچھے کام کے ذریعے۔ اپنی کمیونٹی کہوں گی کہ مجھ جیسی بہت ساری ہیں، صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ہمت، اور اگر آپ کو عزت چاہیے اور کسی چیز کی اس کو پانے میں کمی ہے تو وہ ہے تعلیم۔ مسیحائی پیشی کے ساتھ ساتھ سارا ایک NGO کے لیے بھی وقت نکالتی ہیں۔ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے والے زمانے کے لیے مثال بنتے ہیں، بس ضرورت ہے تو صرف سچی لگن اور حوصلے کی۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
اور اب کچھ بات کریں گے کرکٹ کے میدانوں سے۔ پی ایس ایل سیزن 7 جاری و ساری ہے۔ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر آپ تمام مقابلے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی ٹیمز آمنے سامنے آئیں گی۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر ناقابل شکست ملتان سلطان سر فہرست ہے، اسلام آباد یونائیٹڈ کی دوسری اور لاہور قلندرز کی تیسری پوزیشن ہے۔ پشاور زلمی چوتھے، کوئٹہ گلیڈیٹرز 5ویں نمبر پر ہیں، جبکہ کراچی کنگز ایونٹ میں ایک بھی میچ نہ جیتنے کی وجہ سے آخری نمبر پر موجود ہے۔ پی ایس ایل 7 کا دوسرا مرحلہ 10 فروری سے لاہور میں شروع ہوگا۔ میگا ایونٹ کا فائنل 27 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم کا احوال شامل کیے دیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ دوسری جانب بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی بھی توقع ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی کیبنٹ آور کا وقت مکمل ہوا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ ہم یہاں ایک ہفتہ رک رہے ہیں کراچی میں، اور کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی انیشیٹیوز تھے، کراچی کے نوجوانوں نے کتنے قرضے لیے، کتنے کاروبار شروع کیے، کراچی میں کتنی سکل اسکالرشپس جو کامیاب جوان سکلز فار آل پروگرام ہے وہ ہم نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپورٹس انیشیٹیو، انوویشن لیگ اور گرین یوتھ موومنٹ جیسے جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں، کراچی کے نوجوانوں پہ ان کے کیا اثرات رہے اور ان سے کس طرح انہوں نے کامیابیاں سمیٹیں، اس کی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کل صبح 10 بجے سندھ اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علیم عادل شیخ صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا۔ میں صرف ابھی یہ بات میڈیا کے ذریعے سندھ کے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان سندھ کے نوجوانوں کو کسی سطح پہ بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور کل اعداد و شمار کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی میڈیا پہ رکھوں گا جو پرائم منسٹر عمران خان کا کامیاب جوان سکلز فار آل ہے۔ سندھ کے نوجوانوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے اس میں اسکالرشپ حاصل کرنے میں۔ ہم نے کسی سطح پر بھی یہ نہیں سوچا کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے تو اس لیے سندھ کے نوجوانوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے کسی سطح پہ بھی سندھ کے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ وفاق اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، نوجوانوں کو لے لیں، ہیلتھ کارڈ کو لے لیں، اس حوالے سے بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ سے پوری کوشش کی ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے بھی ثمرات جو ہیں وہ سندھ کے عوام تک پہنچنے چاہیے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے دیگر پروجیکٹس ہیں، چاہے احساس پروگرام کی بات کریں، چاہے ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ کی بات کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن ہے اور ہماری کوشش ہے پرائم منسٹر عمران خان کے جتنے بھی فلائی پروگرام ہیں، چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہیں، چاہے وہ غربت کو کم کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے ہیں، غربت سے نکالنے کے لیے، ان کے ثمرات انشاءاللہ تعالی سندھ کے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اسی مشن کو لے کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کل صبح کریں گے۔ اگر کسی میڈیا کے دوست نے سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ صحت پروگرام کی بات کی، سندھ حکومت کی جانب سے آپ کے صحت پروگرام پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں تک جو ہے وہ اس کے ثمرات نہیں پہنچے ہیں، اور سندھ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے نام چینج کر کے جو ہے وہ اپنا صحت کارڈ رکھ دیا ہے، تو اس کے ثمرات تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور مزید لوگ جو ہے وہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے پھنستے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں سندھ حکومت کی تکلیف سمجھتا ہوں، چونکہ گزشتہ 40-50 سال سے یہ لوگ سندھ میں ہیں، بٹوں کے نام پہ یہ ووٹ لیتے ہیں۔ تعلیم اور صحت کے معاملے میں جس طرح بری طرح سندھ کے لوگوں کو انہوں نے نظر انداز کیا، اب یہ دیکھ رہے ہیں چونکہ انہوں نے
40 साल पिछली 4-5 दहाइयों से काम नहीं किया था और 1-2 सालों में सिंध के सरकारी अस्पतालों की बात करें या ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस हद तक हॉस्पिटल में 2 साल में 3 साल में तब्दीली लेके आ सकते थे। मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विजन है, जिन्होंने तकरीबन 700 के करीब हॉस्पिटल्स को ऑन बोर्ड किया है। ऐसे हॉस्पिटल जिसके दरवाजे से बाहर से गरीब आदमी गुजरते भी डरे कि मैं इसका बिल कैसे अदा करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, इस्लामाबाद, आप लोगों के व्यूज़ लें। आप सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम माजी में अपने घर का जब बजट बनाते थे तो बीमारी की शक्ल में हम सोचते थे क्या दवाई लेनी है, हम अपने बेटे को बेटी को इनकी फीसें अदा कर दें, इनको कपड़े ले दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 10 लाख रुपए तक पंजाब के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला कोशिश है हमारी, बलोचिस्तान GB हर तरफ जाएं, इन लोगों को एम्पावर किया है। मैं सिंध गवर्नमेंट की बुखलाहट समझ सकता हूँ, इन्हें अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए और वफाक के साथ हाथ मिलाना चाहिए। सिंध के लोगों को भी सेहत कार्ड का फ़ायदा पहुँचना चाहिए। थैंक यू जी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख़ास हिदायत हैं कि सिंध के नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। सेहत कार्ड के हवाले से भी समरात सिंध के अवाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ की गोजी खबरां नाल असदामीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में ज़राअत बिलखुसूस कपास की पैदावार बदान का हवालाती अकट हुआ है। अकट में वफाकी वज़रा शौकतरीन सैयद फ़खर इमाम, मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दौर, वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जिखानिया सीनियर हुकाम शरीक हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्यों कि फ़ी एकड़ पैदावार बदान वस्ते जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना गुज़ीरे। उन्होंने की हुकूमत किसानाना जदीद ज़राई आलात, मयारी बीज त खाद पर सब्सिडी फ्राहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों कि किसाना का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वस्ते नवा कवानीन बनाए तो तमाम शराकतदारां ती मुशावरत ना यकीनी बनायो जाएगो। वज़ीर मुल्कत इतलात और नशियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को अकट हुआ है, जिसमें अवामी राब्ता मुहिम को फैसलों किया गया है। तमाम सूबाई सदूर ने 15 यूमा तंजीम मुकम्मल करने की हदायत की है। CCE का अकट के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर मुल्कत फ़ारूक हबीब ने दस्यो कि CEC अकट में मुस्तकिल पार्लिमानी बोर्ड बना दी तो गयो है। जल्द जिला की सतह पर पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन वेंगा तो वज़ीर-ए-आज़म बड़ा इवामी इतमाद से खिताब करेंगा। उन्होंने क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख को ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा थी पाक चीन दोस्ती की वसत में होर बाद हुए। चीन को दौरो मुझ कामयाब रहो तो इसका सम्राट भला नजर आएगा। PTV न्यूज़ का प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गलबात करता हुआ वज़ीर इत्तलात ने क्यों कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन में अफगानिस्तान तक कश्मीर बारे तफसीली तबादलो ख्याल कियो गयो है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने फरवरी ने मोहम्मद मकबूल बट की यूम शहादत मोहम्मद यासीन मलिक की रखाई मुहिम का तौर पर मनान को ऐलान किया है। JKLF ने श्रीनगर थी एक बयान में क्यों कि पार्टी मोहम्मद मकबूल बट मोहम्मद अफजल गुरु को यूम शहादत न शानदार तरीका थी मनाएगी। बयान में क्यों गया कि शहीदा की याद में मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर तो पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरा रैली सेमिनार से दूजा प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। JKLF का चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक पिछले 2.5 साल की गैर कानूनी तौर पर नवी दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद है। भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर ना सरगर्म किरदार अदा करने पर मोहम्मद मकबूल बट ना 11 फरवरी 1984 जबकि मोहम्मद अफजल गुरु ना 9 फरवरी 2013 में नवी दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में तख्तादार पर चढ़ा गया। इनकी मैताना जेल का एहता में दफन कर दी तो गयो थो। ज़राए अबलाग का एक बैनुल-अक़वामी डिजिटल अदारा रेडफिश मीडिया ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक नवा फ़लस्तीन बनन जा रहा है जो तेज़ी थी एक नो अबदियाती रियासत बनती जा रही है।
बरलन मकाम डिजिटल वीडियो ऑर्गेनाइजेशन रेड फिश मीडिया ने जुम्माना जम्मू कश्मीर पर एक नवी दस्तावेजी फिल्म को ट्रेलर ट्वीट किया जिसमें मकबूजा इलाका बारे दस्यो गया कि यह तेज़ी थी एक नो आबादियाती रियासत बनती जा रही है। वीडियो को उन्वान कश्मीर एक और फ़लस्तीन है तो यह 11 फरवरी ना नशर वेगी। रेड फिश ने अगस्त 2020 में ट्विटर दरू रूस की जुटियावा मीडिया अदारा के तौर पर मुतारफ करायो गयो है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी की ज़ेर क़यादत हिंदुत्व हुकूमत ने कश्मीरी साफियाना खरासा करने की अपनी पॉलिसी पर अमल करता हुआ मुमताज़ कश्मीरी साफ़ी गोयर गिलानी ना तलब की हुए। जनूबी कश्मीर का ज़िला शुपियां की अदालत ने साफ़ी गोयर नज़ीर गिलानी ना इनके खिलाफ एक दर्ज झूठा मुकदमा में तलब की हुए। शुपियां का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने एक नोट्स में किया कि अदालत ना मुतलका पुलिस हुक्म दरू 1 फरवरी 2022 का वाक़या का हवाला थी एक रिपोर्ट मौसूल हुई। अदालत ने इनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का काला कानून UAPA के तहत पुलिस स्टेशन सदर श्रीनगर में दर्ज कई झूठा मुकदमात भी शामिल किया है। भारत का शहर हैदराबाद में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दरू कर्नाटक का तालीमी अदारा में हज्जा पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किए गए हुए। एहतजाजी खवातीन ने प्ले कार्ड्स चाया हुआ था जिन पर हज्जा पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के अलावा इसने बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दी तो गए हुए। एहतजाजी खवातीन ने कर्नाटक हुकूमत की मुतालबो किया कि वे अकलीता के खिलाफ अम्तियाजी सलूक को खात्मो करें तो इस गल यकीनी बनाएं कि रियासत की सवानी अपना हकूक को इस्तेमाल कर सके जड़ा इन्होंने दस्तूर के तहत दिता गया है। सवानियन क्योंकि लिबास का इंतखाब कर इनको हक हासिल है तो तालीमी अदारा का कोरोना वबा की बात खुलता ही हजा पर पाबंदी काबिल मजम्मत है। इसका नाली कुछ पर खत्म हुई इज़न देव रब रखो। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन कि आपने किसी इंसान के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सोशगानत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शना खबरें की निमाहानूस अहमद फराज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारतर मुल्क के ज़राअती शोबा बस्करों के हवाला मरकाक बिलिन मरकार वज़ीर आज़म से रहीगुन की आने पैदावार बस्करों के कारते जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल थी जाए तो ने हुकूमत से किसान और जदीद ज़राअती सामान गिनों के साथ साथ मिश टू बीगा पाठ दो के मजा रियायत दी। वज़ीर आज़म से रहीगुन की किसान और हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ कारते ना कानूनी का सनीजन इतलात वज़ीर ममलिकत फ़र्रख हबीब से रेगुन की वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मरकाक बिलिन मरकाज फतु मीडिया ब्रीफिंग दो जुरुस रेगुन की जगो साथ राबता मुहिम शुरू होकर फैसला थी तीन अनमोकार पार्टी मामलों जायज़ा गिनी तीन तोने बल्दियाती इंतखाबात हवाला बोट एक सनी तुन मरकार अनग फैसला थी तीन की वज़ीर आज़म से सियासी हिकमत अमली तहत जगो जलसोट खताब थी। सऊदी अरबी अरीना मामलो वज़ीर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ शम मिंबरो वफद साथ इस्लामाबाद रुशतुन अरीना मामलो वज़ीर शेख रशीद अहमद जास मैदान रसोट गुन वज़ीर आज़म खुसूसी नुमाइंदा हाफिज़ ताहिर मोहम्मद अशरफी गाना मोकार मौजूद असूल सऊदी अरबी वज़ीर से शेख रशीद अहमद खुसूसी दावत पाकिस्तान दौरत हैं अन दौरा रुस सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म इमरान खान साथ मुलाकात थी। सऊदी अरबी वज़ीर से शेख रशीद अहमद साथ तुम वफद गिनी मुलाकात थी। गिलीद बल्तिस्तान बुत खानदानो अश जो इंसाफ सेहत कार्ड जरियाज इलाज शुरू विलिन इंसाफ सेहत कार्ड जरियाज गिलीद बल्तिस्तान हर खानदान साल मजा दे लग बोसुंग मुफ्त इलाज सुबह लईजन गिलीद बल्तिस्तान बुट हस्पताल और साथ पैनल रहानक मुल्क मुत हस्पताल और गा इंसाफ सेहत कार्ड जरियाज इलाज बे अन मकसद कारते हस्पताल और जगो रहनुमाई कारते हेल्थ फैसिलिटेशन ऑफिसरी का मुकर्रर थी तेन जग से हुकूमती तरफ जो अने इकदाम तारीफ थो जो रहीगन की तेन गरीब जगोट इलाज थरों के मजा आसानी बे।
गिलीद बल्तिस्तान कोरोना वायरस से इनके से बस के बोझ कोरोना वायरस से जो बचत बोके कारते वैक्सीन शोके कोमगा जारी हंतोने 10 बोसुंग 8 करोड़ जो बस के मौजूद मजाव वैक्सीन शीतिन जिला गिजर फंडर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल फर्स्ट बोलून आइस हाकी फाइनलर गिलीद बल्तिस्तान असम्बली डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट खसूसी ओशु वसूल जबकि ख़जाना वज़ीर जावेद मनवागा कानूनी मुशीर सुहेल अब्बास से खसूसी तौर शिरकत थे आइस हाकी फाइनल मजाइस नहीं चेगा मुशे और टीम इस शत थे अनमोकार खताब थो जो डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट से रईगुन की सिले लिहाज फंडर एक मिष्टी दिशेखिन खेल आखिर जीत भी लग टीम मजा इनामिगा बगीतन गिलीद बल्तिस्तान उथल इलाकोर बलरात जो हिन वो के सिलसिला जारी हन केसेज बे इलाका अर्शिदलु उम्बस को बुलून अने हवाला सैयद असमतुल्लाह रिपोर्ट गिलीद बल्तिस्तान उथल इलाकोर बलरात जो हिन वो के सिलसिला जारी हैं सिकरदूर शहर का बल्तिस्तान डिवीजन इम्मत इलाकोर हिन वो की इलाका अर्शिदलु बस को बुलून नावाज जिला अस्तोर गिजर नगर का हुंजाई उथल इलाकोर का रातिट हिनवतुन जिला गिजर तहसील फंडर हिनज बे पोनी बंद बिलन तोने जग गुटर बंद बे फत बिलन मौसमियात महकमाई मुताबिक लुस्टाकटगा गिलीद बल्तिस्तान का शाती इलाकोर हिन वो के इम्कान हैं अश बोटो जो बस को शिदलो गोपिसर मनफी 8 सिकरदूर मनफी 7 अस्तोर मनफी पोश बगरोट टर मनफी 4 तोने हुंजार मनफी 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड थिदुन अनसाद ये की शुना खबर फर्श भी लेते सोस्टगात बल्ती खबरें मट इजाजत दा खुदा यार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है बस मुश्किलों रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यदातीन पिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बल्ती खबर को नदर से सलीम रजा हाजिर सोसद वज़ीर आज़म इमरान खान यूलेंस सगयती फैसेसा कपासित होकुंस के चुकाफरी अशिब लस्कुल्लतसद या वखला वज़ीर आज़म इसजरसद सखयती खलीर चिस्पो थोकपो के चुकाफरी जदीद टेक्नोलॉजी कुलबो छछा इंदे बना सगयत बेखन कुल्ला हुकूमत इसी जदीद सगयती आलात लियामो तबीख सोना लुदिका सब्सिडी मिनेन्यूतीन किसान कारिशिदाना सब्सिडी असल फनख्यो सगयत बेखन कुल्ला थोबर गुस्पीन सगयत बेखन कुनी हुकूक कुनी स्ट्रोन लुक्सिफरी नया कानून कुनफचार गुस्पीन खोरतां पे पाकिस्तान कॉटन अथॉरिटी चे उसूली मंजूरी मिनसत वफाकी वज़ीर शौकत तरीन सईद फ़ख्र इमाम मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ना एदलसिल बेखन कुनसा ओंसियत वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब इसी ज़रसत पार्टी चेयरमैन इमरान खान गोपिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी खोरतां पर दुसे सोफीन या खोरतां पे शरबना द्रसे थुल्लुकुल्ला उलजोपो ब्यसद देवना सूबाई सदर गामला जामा चोगिंग तंजीम कुनफचोस जरस्कलसद सी खोरतां पर विजुक्तु मीडिया नद्रसे अखबरातांग वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब इसी ज़रसत सी खोरतां पे मुस्तकिल पार्लिमानी बोर्ड चिकसाफ चोस्पीन देवना मशहमो जिलोंग पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन कुल्लसार याफीन देवना वज़ीर आज़म इसी छोश मकदम को नदरसे खिताब सबीन खुफिया कुछ जरसद बल्दियाती इंतखाबात कुन बेजागी लुक सिंह सा मशहमो स्क्वीन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जरसद लॉन्ग मार्च अपोजिशन सियासी गोस्पीन खोसों से फनखे फरी चिकसोफीन देवना खुन नज़रियात कुन्ना समझो कुन लोकसोयुपीन अपोजिशन लॉन्ग मार्च लुक सिंह तमसिर चिगेंग वज़ीर ख़ारजा से जरसद अपोजिशन एहतजाज खा नयाला चांसा जिह मोहम्मद पीन अम्मा खोन योवी फनख्यों लुक सिंह तारगोस्पीन मार्च नरसुमला OIC वज़ीर ख़ारजों कौंसिल पोसा इस्लामाबादिंग बिया बेसयुद्दीन सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ जगमा चिगी दौरे का पाकिस्तान थुनसद
وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نور خان ایئر بیس سکھا سعودی سپول سوسے صوفین سعودی وزیر داخلہ سوسے پاکستانی ہم منصب شیخ رشید احمدی ڈرونیکا جامع چگی فری پاکستان فین وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نا سعودی شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف تھفی وخلا پاکستان سعودی عربی داخلہ منگ کنی وزارت کنی برنگ تھلو کن کھرکھر بے کھاق پیراتان سید دبن یولی کھورکھاری سترولوک ستان سے بری فنکھیش منگ کنی کھسا تمفور ڈراخو بیسد سعودی وزیر داخلہ سید صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوینا وزیر اعظم عمران خان نسا تھپین گلگت بلتستانی شربلا انصاف قومی صحت کارنزوم سے درنگ نسمانی سہولت کن تھوبسوفین انصاف صحت کارنزوم سے گلگت بلتستانی تدپیش سسپو خملک چو لوزریس منی فری کولبا ینمین یول پوگانگنگ پینے لکھا یوتپی ہسپتال کن ستان سے گلگت بلتستانی ہسپتال کن سا انصاف صحت کارڈیکھا سمن بیا ینمین ہسپتال کن شربلا لمتانی فری ہیلتھ فیسیلیٹیشن افسر کنسا یافین انصاف قومی صحت کارڈ وزیر اعظم عمران خانی گلگت بلتستانی شربی فری چوش تخچین یوبی شدانہ میون لا چوغ ہسپتال کننگ مفت سمن بیا ینمین یولین کرونا سکدین یوتپین ارگل فیجاغی لوکھورین کرونین نتپا انگیشونا چوبگیا ترگل ست دبنا منداستون سمنا سمگیانا انگیشونا چوبگیا لا کرونا سوفین یابزیکا کرونا پھیلوی تھیک پووگی کھفدون اشارہ بجی غائی کھتون ست دیہا نانالا ویکسین تعمیل لسپو دولین یوتپین دبنا امریکی اسمن بیکھن کن نظم سے اومیکرون ویرینٹی فری دوسے تان یوتپی ویکسین کن چھوپین دبنا لوکسو ویکسین تعمیر گسپا میپین فنڈر ونٹر سپورٹس فیسٹیول پوچ شمست ڈپٹی سپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ یا وخلا فیسپر ڈرون پا انپا دبن وزیر خزانہ جاوید منوا مشیر قانون سعید سہیل عباس دونسا اونسیوت پا آئس ہاکی فائنل پینگ یاسین جامباز بسترنگنا بچھونگی ٹیم کنی کھار گلفین یا وخلا خطاب بین گلگت بلتستان اسمبلی ڈپٹی سپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ ڈی سی زرسید سیاحتی لک سنگھ فنڈر لیگنر گشمل سین یا واخلار گلکھن ٹیم کن لا انعام کن گوسے منست خبر کن شمس یا شجدبس خدائی فارنگ